पानी आता कहाँ से? कसाई नदी से आता है। कसाई नदी किसका है? जो आज जो पीर बाबा रोड से आता है, रोड किसका है? जब हम लोग बोल देगा रेल का पानी हम लोग घुसने नहीं देगा तो आप लोग तो मर जाए। বস্তি সংগ্রাম কমিটি ডিআরএম বাংলো ঘেরাও করবে জানতে পেরে আগে থেকেই সকাল থেকে নিজেদের ডিআরএম বাংলো ঘেরাও করে দিল টিন দিয়ে ও ব্যারিকেড দিয়ে রেলওয়ের নিরাপত্তা বাহিনী। খড়গপুর শহরে তীব্র উত্তেজনা বুধবার সকাল থেকে। খড়গপুর ডিভিশনের রেলওয়ে ডিভিশনাল ম্যানেজার KR চৌধুরীর বাংলো ঘেরাও করে দিল বস্তি বাঁচাও সংগ্রাম কমিটি। নেপথ্যে অবশ্য তৃণমূল রয়েছে। খড়গপুরের তৃণমূল নেতাদের নেতৃত্বেই মূলত বস্তির বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে ডিআরএম বাংলো ঘেরাও করে দেওয়া হয়েছে। আর ডিআরএমের সমস্ত কিছু রক্ষা করতে রেল পুলিশের আধিকারিকরা তথা আরপিএফের পক্ষ থেকে বাংলো সংলগ্ন দুটো দিক টিন দিয়ে ও ব্যারিকেড দিয়ে পুরোপুরি সিল করে দিয়েছে। এতে ডিআরএমের স্বাভাবিক বিচরণের ক্ষেত্রে হয়তো খুব একটা সমস্যা হয়নি, কিন্তু ওই রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে সকাল থেকে। বস্তির মানুষেরা এবং তৃণমূলের নেতৃত্বে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা বস্তি বাঁচাও সংগ্রাম কমিটির ব্যানারে এই ডিআরএম বাংলো ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছে। লক্ষ্য, গত কয়েক মাস ধরে খড়গপুর শহরে যে বস্তি উচ্ছেদ পরিকল্পনা ডিআরএমের নেতৃত্বে রেলওয়ে নিয়েছে তা আটকানো। উল্লেখ করা যায়, গত কয়েক মাস ধরে পুরী গেট সহ খড়গপুরের বিভিন্ন এলাকার বস্তিতে রেলওয়ের জমি রয়েছে এমন দাবি করে রেলওয়ে আধিকারিকরা উচ্ছেদ পরিকল্পনা নিয়েছেন, বারবার নোটিশ দিয়েছে। হয়েছে একইভাবে মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন ভূঁইয়াপাড়া এলাকাতেও। সকলেরই দাবি ডিআরএম নতুন করে যিনি এসেছেন KR চৌধুরী, তিনি নাকি এই সমস্ত পরিকল্পনা নিচ্ছেন। বারবার এই উচ্ছেদ করতে গিয়ে প্রতিবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তার কারণ, পুরী গেট সংলগ্ন এলাকার যে জমি নিয়ে দাবি করা হয়েছে সেই জমি রাজ্য সরকারের বলে দাবি করেছে তৃণমূল। তা নিয়ে পুরোপুরি এখনও পরিষ্কার জায়গা বের হয়নি। তার আগেই উচ্ছেদ জোরালো করতেই এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। তৃণমূলের পক্ষ থেকে তথা বস্তি সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, যদি বস্তির লোকজনকে থাকতে না দেওয়া হয়, জবরদস্তি তুলে দেওয়া হয়, তাহলে ডিআরএমকেও থাকতে দেওয়া হবে না এই এলাকাতে। তাই যেভাবে বস্তি বাঁচাও সংগ্রাম কমিটি বস্তি লোকেদের নিয়ে লড়ছে, যদি উচ্ছেদ হয় তাহলে ডিআরএম অফিসে এসে বসবে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে নেতৃত্বে থাকা প্রদীপ সরকার দাবি করেছেন, যে রাস্তা তারা ডিআরএম অফিস ব্যবহার করে, অর্থাৎ খড়গপুর রেল শহরের যে জল আসে কংসাবতী নদী থেকে, সেই জল কিন্তু রাজ্য সরকারের রাস্তার উপর দিয়ে আসে। কংসাবতী নদীরও অংশ রাজ্য সরকারের আওতায় পড়ে। ফলে রাজ্য সরকারের কোনো রকম সহযোগিতা তারাও দেবে না রেলকে। রেল স্বয়ং সম্পূর্ণ হোক, তার এলাকাতে নিজেদের কুয়ো থেকে তারা জল ব্যবহার করুক এবং ড্রেনেজ সিস্টেমটাই শোকপিট করে ব্যবহার করুক। রেলের কোনো রকম কোনো কিছু রাজ্য সরকারের নেওয়া দেওয়া করা চলবে না, এমন একাধিক দাবি করে তীব্র বিক্ষোভ বুধবার সকাল থেকে। আর পরিস্থিতি সামাল দিতে আরপিএফ অনেক বেশি তৎপর হলো, ব্যারিকেড করে ঘিরে দিল সমগ্র ডিআরএম বাংলো চত্বর। শুনে নেওয়া যাক বিক্ষোভকারী থেকে ডিআরএম এই বিষয়ে কে কি জানিয়েছেন। आप बोल सकता भैया हम रेल का रास्ता बंद किया, रास्ता रेल का मुझे कुछ नहीं होता। साहब अगर कल मुंडा बोल रहा था कि गिरी मैदान में जो हमारा जो खैजा लेवल क्रॉसिंग है वो भी तो रेल का लेवल क्रॉसिंग है, तो उसका पहाड़ा क्यों हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस उसका ट्रैफिक कंट्रोल करता, वही में विद्यालय नहीं आती है, वहां पे क्यों आपको नहीं देता आप लोग? ये देश नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ममता दीदी है, ये है बोल के डीआरएम से बोला कि पश्चिम बंगाल बोल के सपाट है। मैं भी उनको बोल के जा रहा हूँ, पश्चिम बंगाल है बोल के रेल इतना शांतिपूर्वक काम कर सकेगा। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है बोल के आप लोग खरीदागिरी मैदान में फ्लाई ओवर बनाया, हम लोग मदद किया। पश्चिम बंगाल है बोल के आज मेट्रो रेल का जमीन बोलिए, आज DSF का जमीन बोलिए, दीदी आप लोगों को दिला देगा। आप पश्चिम बंगाल का बदनाम मत करिए, आपका जो रोटी रोटी है बंगाल से ही चल रहा, आप DRM बंगाल का है, बंगाल का बदनाम मत कीजिए। आपका पानी आता कहाँ से? कसाई नदी से आता है। कसाई नदी किसका है? जो आज जो पीर बाबा रोड से आता है, रोड किसका है? जब हम लोग बोल देगा रेल का पानी हम लोग घुसने नहीं देगा तो आप लोग तो मर जाए। जैसा हमारा पाकिस्तान को पानी बंद कर दिया रोना, तो आप लोग भी रोने लग जाएगा। अगर आप लोग को पीने का पानी नहीं रहेगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगा, अगर तृणमूल कांग्रेस नहीं चाहेगा, आज ममता दीदी है बोलते अच्छा पर पानी मिल रहा है आपको, ये बात दिमाग में रखो। आज आप बोलता हम लोग रेल का जगह घेर लेंगे, बहुत अच्छा घेर लीजिए। आपका 17 का पॉइंट है, जो रेल का पानी हम लोग को म्यूनसिपालिटी को धोखे ले जाने पड़ता। आज रेल का पानी, IIT का पानी आज पंचरिया भर जाता है, मेरा वार्ड भर जाता है। आज के पूरा रेल नगरी मालूचर से शुरू करके जहाँ जहाँ पॉइंट है, रेल का जो आपका पानी है वो जाता है। एक तो DRM बांग्लो है,
बगल में, उनका पानी कहाँ जाता पूछिए तो, उनका घर में क्या शक्ति है? वो तो पानी छोड़ के आनंद से जीता है, पूरा झपेटापुर रोज पानी में बहना रहता। तो हम लोग बोलेंगे आप अगर रास्ता भी बंद करेगा तो नली भी बंद कर दो, आप अगर रास्ता बंद करेगा तो पानी भी बंद कर दो, अब यहाँ पे क्या खोदो, यही रहो, आपको तो जगत के बाहर नहीं जाना, आप यहाँ भी जाओ, आपको बाहर निकालने का जरूरत है। अगर दम रहेगा तो अगर आप सोचोगे कि हम दादागिरी करके दखल कर लेंगे, जब तक ममता दीदी है, जब तक तृणमूल कांग्रेस है, जब तक बस्ती बचाओ कमेटी है, आपका दम नहीं होगा खड़गपुर में कोई बस्ती जाके तोड़ देगा, लोकल पुलिस से चर्चा नहीं करके, ये तो आप लोग होने नहीं देंगे। हम अभी भी आपको मैसेज देने हैं, आप इतना बड़ा टीना लगा अच्छा लगा, पूरा बोल रहा था, ये डर मुझे अच्छा लगा। आपका घर क्यों चुना? उन्होंने पेट में बोला घर क्यों चुना? इसका भी वजह है, आप अगर दूसरा गरीब को घर में अत्याचार करोगे तो आप भी सुरक्षित नहीं रहोगे। ये टीना आपको एक दिन के लिए नहीं, 12 महीना के लिए टीना लगेगा। अगर आप पूरी के तोड़ने जाओगे तो 12 महीना हम लोग यही बैठे। अगर वो घर टूटा तो हम लोग DRM बांग्लो में घर बना के यही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी घर में रहो, हम लोग भी यहाँ रहेगा, लड़ाई मैदान में दिखाया जाएगा। ये सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं, ये लड़ाई नहीं करना है। ये अगर जो टीना का देख रहा ना, अगर तृणमूल कांग्रेस सोचेगा ये आधा घंटा नहीं लगेगा, टीना तोड़ के DRM का बांग्लो घुस जाएगा, इतना तो दम तृणमूल कांग्रेस पे है। तो पानी हम लोगों से लोगे, रास्ता हम लोगों से लोगे, आपके लाइट हम लोगों से लोगे और हम लोगों को सुलूक करेंगे। एक बात है भाई, ऐसे किया कि आप कोई पार्टी का मत होइए। कुछ दिन आगे आज से एरिया लगा के कुछ डर को देख के बोलते हैं तमाम लोग, इसलिए इलेक्शन आने से ही आपको बस्ती तोड़ने का याद आता, वोट आने से ही आपको गरीब को ऊपर अच्छा लगता है। ये दोबारा हम लोग करेंगे नहीं। एक बात आपको बोल के जा रहा, आने वाला दिन में हम लोग जब तक हमारा बस्ती बचाओ कमेटी है, तृणमूल कांग्रेस है, खड़गपुर में कोई बस्ती उच्छेद हम लोग मत जब तक होने नहीं देगा। আজকে আমাদের কর্মসূচি DRM বাংলো অভিযান। আমরা যখন এখানে এলাম দেখলাম DRM নিজেই নিজেকে জেলখানায় বন্দি করে নিয়েছে, রাস্তা চারিদিকে টিন দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। তাই আমরা যেখানে ঘিরে দিয়েছেন সেখানে আমরা অবস্থান করছি। আমরা চাই অবিলম্বে DRM এর অপসারণ। যেখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি এখানে দেখুন দেওয়াল দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, মানুষ এসে এই দেওয়ালটা ভেঙেছে যাতায়াতের জন্য। খড়গপুর শহরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে একটা স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে। এর আগে বহু DRM সে কাজ করেনি। সময় মতো খড়গপুর হাওড়া সেকশনে ট্রেন চালাতে পারছে না, খড়গপুর মেদিনীপুর সময় মতো ট্রেন চলছে না, রেলের হাসপাতালে ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, রেলের কলোনিতে পানীয় জল দিতে পারছে না, ড্রেনগুলো পরিষ্কার হয় না, রেলের সেটেলমেন্টে ডেঙ্গুর প্রভাব বাড়ছে, অথচ উনি মানুষের অসুবিধা করে রাস্তা বন্ধ করছেন। অবিলম্বে এই DRM-কে অপসারণ করতে হবে। যেহেতু উনি প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন 5000-এর বেশি এভিকশন করবেন, আমরা একটিও বস্তিবাসীর উপরে হাত দিতে দেব না। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিদি বলে গেছেন মেদিনীপুরে এসে যে খড়গপুরে রেল বস্তি থেকে গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করছে কি করে, আমাদেরকে দেখার কথা বলেছেন। দিদির কথা মাথায় রেখে আমরা অভিষেকের কথা মাথায় রেখে বস্তি বাঁচাও সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে সামিল হয়েছে এই লড়াইতে। এই DRM-এর অপসারণ চাইছি। এই DRM-কে আমরা খড়গপুর থেকে বাইরে পাঠাবো। কিছুতেই আমরা খড়গপুর শহরে DRM-কে এই অন্যায় কাজ করতে দেব না। উনি নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী মনে করছেন, উনি প্রশাসনকে না জানিয়ে উনি যে কোনো জায়গায় গিয়ে ঘর ভাঙছেন, রাস্তা আটকে দিচ্ছেন। তারই প্রতিবাদ DRM বাংলো অভিযান। প্রথম কথা হচ্ছে DRM-কে বুঝতে হবে আইন কাকে বলে, ন্যায় কাকে বলে। বেঁচে থাকার অধিকার এই দেশের মানুষের আছে। যাদের কাছে আধার কার্ড আছে, যাদের কাছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, ভোটার কার্ড আছে, তারা এই দেশের নাগরিক। এই দেশে প্রচুর ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড খড়গপুর শহরে আছে, সেখানে আবাস যোজনার ঘর তাদের জন্য হবে না কেন? বিজেপির নেতারা DRM অফিসে গিয়ে DRM-কে উত্তরীয় পড়াচ্ছে আর মেদিনীপুর থেকে বলছে CRPF এনে আমাদের হাত পা ভেঙে দেওয়া হোক। সময় হলে সেই সমস্ত নেতার হাত পা আমরা ভেঙে দেব। কারণ যদি বস্তিবাসীর উপরে উচ্ছেদ করতে আসে সে যত বড়ই নেতা হোক আর যত বড়ই অফিসার হোক রেলের, আমরা এই কাজ হতে দেব না। এটা ন্যায়ের লড়াই, বেঁচে থাকার লড়াই।
এই বেঁচে থাকার অধিকারকে ডিআরএম কেড়ে নিতে পারে না। এটা আমার নেত্রীর ঘোষণা, আমার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে গেছেন দেখবার জন্য। আমরা এই জন্য যা যা করণীয়, যে ধরনের আন্দোলন করতে হয় আমরা করব। তারই অংশ হিসাবে আজকে ডিআরএম বাংলো অভিযান। আজকে নিজেই ভয় পেয়ে ভীরু কাপুরুষ নিজের ঘরকে ঘিরে নিয়েছেন টিন দিয়ে চারিদিকে। এই ভীরু কাপুরুষরা কখনো কোনো ডিভিশনে ডিআরএম হতে পারে না। অবিলম্বে এর অপসারণ চাই। এবার শুনে নেওয়া যাক এই বস্তি উচ্ছেদ প্রসঙ্গে বা বাংলো ঘেরা প্রসঙ্গে কি জানিয়েছিলেন খড়গপুর ডিভিশনের ডিআরএম KR चौधरी। तो वो जो आदेश है वो कोई मेरा डीआरएम का या किसी और अफसर का कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है कि कह दिया कि तुम हट जाओ। नो, ये जो कानून की प्रक्रिया निर्धारित है पीपी एक्ट में, एक लेट डाउन कार्रवाई प्रोसीजर है, उसको कर दिया। तो जो ऑर्डर है वो जुडिशियल ऑर्डर है। उस जुडिशियल ऑर्डर से अगर कोई पार्टी एग्रीड है, उनको ये लगता है कि ये ज़मीन गलत है या नहीं है, दे शुड गो टू अपील, दे शुड टेक द स्टे ऑर्डर। वो अगले कोर्ट में जाए, कोई मना नहीं कर रहा ना। जो आपकी कानून के अनुसार जो भी रेमेडी अवेलेबल है, उस रेमेडी को आप मांगिए। वो नहीं करेंगे, उनको पता है कि वो गलत है। मैं वही बात कह रहा हूँ। तो इसलिए जो ये अफवाह फैलाई जाती है वो बिल्कुल भ्रामक है, वो गलत है। और उनको भी पता है कि ये चीज़ें जो वो कह रहे हैं सिर्फ जो है पब्लिक कंजप्शन के लिए, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। और एक लेट मी कंप्लीट, पहले इसको मैं पूरा कर लूँ एक बात को। अब जो आपने बात कही कि स्टेट ने ऐसा कहा, उसके बाद भी हमने मान लिया। हमें 2 पेज का लेटर लिखा नगर पालिका जो यहाँ की है खड़गपुर की, उनकी चेयरपर्सन सूर्य कल्याणी घोष ने ये सब जो आप बात कर रहे हैं उन्होंने राइटिंग में दिया। एंड वी हैव पैरावाइज रिप्लाइड टू देम। जो उन्होंने सवाल किए थे सारी रिप्लाई हम लोग उनको दे चुके हैं। स्टेट ऑफिसर के कार्यालय से वो रिप्लाई जा चुकी है, वो रिप्लाई डीएम को भी जा चुकी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि रेलवे उस पर कोई रिएक्ट नहीं करी। रेलवे को कोई छिपाने का नहीं है। हम कोई पर्सनल व्यक्तिगत काम नहीं कर रहे, कोई एजेंडा नहीं है। जो चीज़ है, जो कागज़ पे है, जो रिकॉर्ड पे है, सबको बताया जाता है। उसके बाद भी हमने उनको कहा, डीएम को लेटर लिखा कि भाई आप आइए। और उन्होंने कहा कि पहले आपने कोऑर्डिनेट करके काम नहीं किया, तो हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई एडीआरएम के अध्यक्षता में। एक बार बुलाई, कोई नहीं आया। दूसरी बार फिर बुलाई, दूसरी बार भी कोई नहीं आया। डेट अभी हम निकाल के दे देंगे एग्जैक्ट आपको, आप डेट निकलवा लीजिए घोष। तो 2 बार बुलाया, नॉट ए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट हैज अपीयर्ड फॉर दिस कोऑर्डिनेशन मीटिंग। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? ये सारी चीज़ें ये है कि क्योंकि इसमें कहने को कुछ नहीं है, ये सिर्फ माहौल बनाने का और कोई अपना पर्पस जो भी सॉल्व करना है, आई डोंट वांट टू नेम दैट। तो ये सब करने के लिए है ताकि जनता भ्रमित रहे और गलत चीज़ों में उलझी रहे। बाकी इनका क्या एनक्रोचमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ, ऑफिसर के खिलाफ 2 एडीआरएम खिलाफ है। एक जो है इनके आरपीएफ थाने का जो टाउन इंचार्ज है उसके बाई नेम है, और मेरा बाई डेजिग्नेशन है, मेरे खुद के खिलाफ। हाँ, तो आप क्या समझ रहे हैं? हाँ, एक है, दूसरा परसों आएंगे तो फिर कर देंगे। क्या लेके वो वही घर, हमारे घर का घेराव किया और हमारे ऊपर केस है। सबसे बड़ी इस राज्य में खासियत ये है कि आप दूसरे घर में जाइए, कब्जा करिए, डराइए, धमकाइए, उसके खिलाफ उसके ऊपर एक FIR कर दीजिए। ऐसा आपको पूरे कंट्री में कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ के अलावा। इट इज ए यूनिक स्टेट, सॉरी टू से। जिस तरीके से जब आप लॉ एंड ऑर्डर की पूरा कोलैप्स हो जाए या उसको आप बिल्कुल जो इस तरीके से कर दोगे तो चीज़ें कैसे होगी? इसलिए ये लोग जो है अनऑथराइजली रेलवे कॉलोनी में रहते हैं और यही धरना प्रदर्शन करते हैं। मैं बात ये कह रहा हूँ कि कोई भी सरकारी दफ्तर से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी होती है तो घेराव या धरना या प्रदर्शन या जो भी आपके एक तो आंदोलन होते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन है, वो भी आप ऑफिशियल प्रीमाइसेस का कर सकते हैं। किसी के घर का घेराव करना किसी नियम, कायदे, किसी प्रोविजन में नहीं आता। ये बिल्कुल गैर कानूनी और डराने धमकाने का एक एक्शन है और कुछ नहीं। दूसरा जो इन्होंने अपना जो मोटिव सीधा करना था आप अपना करते रहिए, पर उसमें सरकारी विभागों को मत उलझाइए। आपके कोई और भी कारण है। अब तरफ से केस किए गए हम लोग, आपको हमने बताया कि 2024 में 28 केस किए गए,
टोटल जो मतलब न्यूसेंस और सब तरह के 28 केस है, उसमें ये भी है वो भी है, सब तरीके के हैं, और 12 केस इस साल के हैं। सर आपने पॉलिटिकल पार्टीज को जो इन्फॉर्मेशन दिए थे उनका कोई फीडबैक आया? कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिप्लाई भी नहीं आया, कोई रिप्लाई भी नहीं आया, और कोई उन्होंने अभी एक्शन लिया भी नहीं। और जैसा कि हमें वो भी पेपर कटिंग से पता चला कि जैसे वो कहना चाह रहे हैं कि रेलवे के तो ऐसे ही मतलब वो लिख रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता, ऐसा सम पेपर वाज एज रिपोर्टेड लाइक दैट, और ऐसा नहीं है। एक बार कार्रवाई, क्योंकि इसमें देखिए पॉलिटिकल पार्टीज है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक जो एक्ट है, पीपल्स एक्ट है, उससे गवर्न होती है 1951 से। तो आरपीए में अगर उन्होंने जो भी जिसके आधार पर उनको मान्यता मिलती है, मुझे नहीं लगता कोई प्रोविजन होगा आरपीए में ऐसा कि आप जाके सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके दफ्तर बना दीजिए और मान्यता प्राप्त पार्टी बनी रहेगी। मेरा मानना है कि ऐसा कोई प्रोविजन संविधान में क्या उनके कानून आरपीए एक्ट में नहीं होगा। और जब आरपीए एक्ट में ऐसा कहा नहीं है तो फिर उस एक्ट के थ्रू जो भी कार्रवाई होगी इलेक्शन कमीशन से होगी कि भाई जब ये इलीगल तरीके से अपने दफ्तर चला रहे हैं तो बाकी काम भी इलीगल करते हैं।